Hello everyone, welcome to the class. So today we're going to solve some arithmetic question. देखता है पहला क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Two trains P and Q equivalents are running on parallel track at the speed of 40 meter per second and 50 meter per second. If they cross each other in t second while traveling in opposite direction to each other and takes 45 seconds to cross each other while traveling in same direction, find the value of t. So कैसे होगा? Two trains P and Q, दोनों का लेंथ इक्वल है, that is L. Now running on parallel track at the speed 40 meter per second and 50 meters per second. If they cross each other in t second while traveling opposite direction में स्पीड का सम होगा. सो t का वैल्यू हो जाएगा 12 बाई, इधर है 40 और इधर है 50, तो सम होगा 90, कैंसिल 45. सो t का वैल्यू हो गया L बाई 45 और L का वैल्यू हो जाएगा कितना? 45t. ओके. सो नेक्स्ट केस में दे क्रॉस ईच अदर व्हाइल ट्रैवलिंग सेम डायरेक्शन में डिफरेंस होगा. रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? डिफरेंस ऑफ टू स्पीड. सो लेंथ तो 2L ही होगा, दोनों का सम. और इधर हो जाएगा 50 माइनस 40 दैट इज 10 और इसका वैल्यू हो जाएगा 45. सो L का वैल्यू इधर से 5 इंटू 45 कितना होगा? 5 5 25 2 5. सो L का वैल्यू हो जाएगा 225. सो T का वैल्यू 225 डिवाइडेड बाई 45. सो 5 आंसर. T का वैल्यू कितना? 5. नाउ नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? 210 liters of mixture contain milk and water in the ratio of 4:3 respectively. When 2x liter of milk and x plus 15 liters of water are added to the mixture, the ratio of milk to water becomes 7:5. Find the value of x. So, पहला मिक्सचर कितना था? 210 liters. रेशियो में 4:3. Then 2x liter milk and x plus 5 liter of water is added. So 210 लीटर में मिल्क कितना था? 210 इंटू 4/7, 7 से गया 3, दैट इज 120. वाटर कितना हो जाएगा? 210 माइनस 120 दैट इज 90. ये था इनिशियल मिल्क एंड वाटर. नेक्स्ट 120 में 2x लीटर मिल्क ऐड किया गया और वाटर कितना ऐड किया? x प्लस 15 लीटर. 90 प्लस x प्लस 15 इक्वल्स टू 7/5. ओके. सो 5 इंटू 120 दैट इज 600 प्लस 10x इक्वल्स टू 7x और इधर 105 इंटू
7 कितना हो रहा है 105 7 7 × 7 735। तो x का वैल्यू हो जाएगा 735 minus 600, that is 135 divided by 3, so 445. ये है आंसर. Done. Now next one. Find the difference between simple interest and compound interest earned after 2 years when 24,000 is invested at the rate of 20% per annum compound annually. Show. ये कैसे होगा? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 years का डिफरेंस का एक फॉर्मूला है. CI माइनस SI क्या फॉर्मूला है? P इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर. यह है फॉर्मूला. हम लोग को यह निकालना है CI माइनस SI. सो कितना होगा 2400 इंटू R का वैल्यू है 20 का स्क्वायर दैट इज 400 बाई 100 का स्क्वायर दैट इज 100 इंटू 100. 0 कैंसिल 0 कैंसिल. 24 इंटू 4 दैट इज 96 10. ये हो गया CI माइनस SI का डिफरेंस. देन next, a boat takes 630 minutes to travel from point A to B, then come back to point A. The distance between A and B is 72 km. If the ratio of speed of the boat in still water to the speed of the water in current is 7:8. What is the speed of the boat downstream? Show. यहाँ पर दिया है स्पीड ऑफ द बोट एंड करंट का रेशियो दैट इज 7x and x. ये स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द करंट. नाउ डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होगा? 7x प्लस x दैट इज 8x और अपस्ट्रीम स्पीड 7x माइनस x दैट इज 6x. नाउ टोटल डिस्टेंस A टू B कितना है? 72 किलोमीटर. 72 बाई 8x पहले डाउनस्ट्रीम में गया फिर आएगा तो अपस्ट्रीम में आएगा. सो 72 बाई 66. ये टोटल कितना है? 630 मिनट्स. सो 630 डिवाइडेड बाई 60 आवर हो गए. सो 0 कैंसिल. 3 से गया 2, 3 से गया 2, 1. डन. इधर से 6 से गया 12, इधर से 8 से गया 9, 3 3 3 3 4 3 3 7. शो 3 बाई x प्लस 4 बाई x इक्वल्स टू 7 बाई 2. सो ये ऐड होने से कितना होगा? 7 बाई x इज इक्वल टू 7 बाई 2. 7 7 कैंसिल. x का वैल्यू हो गया 2. सो what is the speed of the boat in downstream? Downstream में speed कितना है? 8x. so 8 into 2 that is 16 kilometer per hour. Done. Now next one. Next क्या दिया है? In a 160 liters mixture of milk and water, the percentage of water is only 35%. मिल्क में
gave 40 liter of this mixture to the customer and then added X liter of pure milk in the remaining mixture. As a result, the percentage of water in the final mixture is 30%. What is the value of X? So कैसे होगा? पहले मिल्क एंड वाटर का टोटल मिक्सचर कितना था? 160 लीटर्स. 160 लीटर में मिल्क कितना था? 35% वाटर था, सो मिल्क होगा 65%. मिल्क कितना हो जाएगा? 65% एंड वाटर हो जाएगा कितना? 35%. सो रेशियो क्या होगा? 13:7. सो मिल्क का अमाउंट 160 into 13/20, 08, 813, 104. सो ये हो गया मिल्क का अमाउंट. वाटर का अमाउंट कितना हो जाएगा? 160 minus 104, दैट इज 56 लीटर. ये हो गया वाटर. नाउ 40 liters of this mixture given to the customer. Then 40 लीटर दे दिया है. रिमेनिंग कितना है? 120 लीटर्स. 120 लीटर्स में 1 लीटर प्योर मिल्क ऐड किया गया. 120 लीटर में मिल्क कितना था? 13/20, 6, 78 मिल्क था. और वाटर कितना हो जाएगा? दैट इज 742 लीटर्स. सो नेक्स्ट केस में क्या किया गया? 40 था मिल्क, उससे 1 लीटर प्योर मिल्क ऐड किया गया एंड वाटर का अमाउंट सेम है, दैट इज 42 लीटर्स. इसका ये कौन सा? एज अ रिजल्ट वाटर इन द फाइनल मिक्सचर इज 30%. सो इसका रेशियो क्या होगा? 30% वाटर, दैट इज ये नीचे 30 हो जाएगा, ऊपर कितना होगा? 70. 0 0 कैंसिल. 3 से गया कितना? 14. 14 इंटू इधर हो जाएगा कितना? 78 प्लस एक्स, 78 प्लस एक्स, और उधर हो जाएगा 14 इंटू 7. सो 14 इंटू 7 कितना होता है? 98. सो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 98 माइनस 78, दैट इज 20. ये है आंसर. देन नेक्स्ट, the ratio of percentage of P and Q is 5:7. The ratio of P's age 4 years ago to Q's age 10 years hence is 1:2. What will be the ratio of P's age after 2 years hence to Q's age 6 years hence? So P and Q का रेशियो दिया है 5:7 प्रेजेंट एज का. P and Q का, P का 4 ईयर पहले, Q का 10 ईयर बाद का रेशियो है 1:2. निकालना है P का 2 साल बाद एंड Q का 6 ईयर बाद का रेशियो. मान लेते हैं P का प्रेजेंट एज है P ईयर्स एंड Q का प्रेजेंट एज है Q ईयर्स. सो P बाई Q इसका वैल्यू है 5/7. सो 7P माइनस 5Q इसका वैल्यू है 0. ये है फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट, P का एज 4 साल पहले, P माइनस 4. Q का एज 10 साल बाद, दैट इज Q प्लस 10.
इसका वैल्यू है 1/2, सो 2p माइनस 8 q प्लस 10, सो 2p माइनस q इक्वल्स टू 18, सो q का वैल्यू कितना हो जाएगा 2p माइनस 18, ये हो गया q का वैल्यू, सो 7p माइनस 5 2p माइनस 18 इक्वल्स टू 0, तो 7p माइनस 10p प्लस कितना होगा 90 इक्वल्स टू 0, सो 10p 7p 3p का वैल्यू कितना 90, सो p का वैल्यू हो जाएगा 90/3 दैट इज 30, सो q का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू 30, सो 7 इक्वल्स टू 42, ये हो गया Q का प्रेजेंटेज और ये है P का प्रेजेंटेज, सो P का 2 साल बाद कितना होगा 32 और Q का 6 साल बाद दैट इज 48, सो 8 से गया 4, 8 से गया 6, 2:3, ये है रिक्वायर्ड रेशियो का वैल्यू। डन। नाउ नेक्स्ट वन, a dealer sell his good with 2 successive discount 20% and 25% respectively, still make a profit of 16.67%. What is the approximate profit percent earned by him if he gives a single discount of 28.56 instead of 2 discount? सो कैसे होगा मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस होगा 100, पहला डिस्काउंट सॉरी ये है मार्क प्राइस, पहला डिस्काउंट है 20%, देन है 25%, सो सेलिंग प्राइस कितना होगा 100 इंटू 80/100 इंटू 75/100, कैंसिल 3 4 4 20, सो 60, ये है सेलिंग प्राइस। नाउ still makes a profit of 16.67%, सॉरी ये है सेलिंग प्राइस, इसमें भी 16.66% प्रॉफिट है, सो 16.67 प्रॉफिट परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/6, सो अगर कॉस्ट प्राइस 6 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 7, सो 7 का इक्वल है कितना 60, सो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60/7 इंटू 6 दैट इज 360/7, ये हो गया एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। नाउ what is the approximate profit percentage if he gives a single discount of 28.56%, so 25.6% अगर डिस्काउंट देगा
तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? शो 28.56, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1 बाई नहीं होगा, 14 पॉइंट्स का होता है, 14.28 का 1/7 होगा। सो 20 इंटू सॉरी 2/7, सो 28.56 का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 2/7। इसका मतलब अगर एक आइटम का मार्क प्राइस 7 है, सो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5 होगा। नाउ सेलिंग प्राइस तो मार्क प्राइस 100 है, सो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100/7 इंटू 5, दैट इज 500/7। ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट केस में सो प्रॉफिट कितना होगा? 500/7 दैट माइनस 360/7, दैट इज 140/7। सो प्रॉफिट हो जाएगा 140/7 डिवाइडेड बाई 360/7 इंटू 100। 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, सो 14/36 इंटू 100। सो प्रॉफिट परसेंटेज अगर इसको 12 कर दो, सो ये 3 हो जाएगा, 3 से 100 जाएगा तो 33.33% अप्रोक्सीमेटली। डन। नेक्स्ट, in a mixture the ratio of milk and water is 7:2 respectively. If 63 liter of mixture is replaced by the same quantity of water, then the ratio change to 7:5. Find the quantity of water mixture after replacement. पहले कितना था? 7:2। ओके, ये था, ये मिल्क, ये वाटर। 63 लीटर में मिल्क कितना होगा? 63 इंटू 7/9, सो 9 से गया 7, 7 इंटू 7 49, सो 49 मिल्क माइनस होगा और रेस्ट वाटर माइनस होगा। वाटर कितना था? 60, टोटल था 63, 49 माइनस होने से 114 होगा, प्लस 63 वाटर ऐड होगा। इसका रेशियो हो गया 7:5। ओके, नाउ 5 इंटू 7x, ऊपर से 7 कैंसिल कर दो, 7 और ई भी 7, सो 5x माइनस 35 और इधर हो जाएगा 2x प्लस 63, दैट इज 949। सो x का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी 3x का वैल्यू हो जाएगा 84। सो x का वैल्यू हो जाएगा 28। ये था, सॉरी x का वैल्यू 28। सो इनिशियल फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर आफ्टर रिप्लेसमेंट। सो वाटर का क्वांटिटी कितना होगा? 2 इंटू 28 माइनस 14 प्लस 63, so 2 into 28, that is 56 minus 14, that is 42 plus 63, that is 105। ये है आंसर। नेक्स्ट,
A start a business with the initial investment of rupees 20,000. After 3 months, B joined him with the investment of 15,000, and after another 6 months, C joined him with the investment of 25,000. So, if the profit earned by A after 1 year is 4,800, then the profit earned by B, C together. So, investment ratio कैसे होगा? ए था ए का अमाउंट 12 मंथ के लिए, आफ्टर 3 मंथ्स दैट इज 9 मंथ के लिए बी ज्वाइन किया, कितना अमाउंट लेके 15,000 इंटू 9. रेस्ट सी ज्वाइन किया कितने मंथ के लिए, ए 3 महीना, उसके बाद 6 महीना, 9 दैट इज 3 मंथ के लिए सी ज्वाइन किया. सी, बी और ए. 30 30 30 कैंसिल. 3 3 4, 5 से गया 4, 5 से गया 3, 5 से गया 5. सो 4 4 16 is to 9 is to 5. ये है इन्वेस्टमेंट रेशियो एंड एज वेल एज प्रॉफिट रेशियो. नाउ ए का प्रॉफिट कितना है 4,800, दैट इज 16 का वैल्यू हो जाएगा 4,800. सो 1 का यूनिट का वैल्यू कितना 300. सो बी एंड सी टुगेदर कितना है 14 यूनिट. 14 इंटू 300 दैट इज 4200. ये है आंसर. डन. शो. थैंक यू क्लास.